The Zubairi, President of the Supreme Court Bar Association, exercised their right of reply and were heard. These petitions were heard by the full court on 18 September, 3rd, 9th, 10th and 10th October 2023 and are today disposed of in terms of the order of the court. And this has been signed by all of us. And now I shall read the order of the court. For reasons to be recorded later, these petitions are decided as under. And if you don't get it, it's all right. We'll have it uplinked on the website today. Subject to paras 2 and 3 below, by a majority of 10 to 5, within parenthesis, Justice Ijazul Ehsan, Justice Munib Akhtar, Justice Sayyid Mazahir Ali Akbar Naqvi, Justice Aisha A. Malik, and Justice Shahid Wahid dissenting, bracket close, the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. Paragraph 2. By a majority of 9 to 6, within bracket Justice Ijazul Ehsan, Justice Munib Akhtar, Justice Yahya Afridi, Justice Sayyid Mazahir Ali Akbar Naqvi, Justice Aisha A. Malik, and Justice Shahid Wahid dissenting, right close, subsection 1 of section 5 of the Act, within brackets, granting a right of appeal prospectively, is declared to be in accordance with the Constitution, and to this extent the petitions are dismissed. Paragraph 3. By a majority of 8 to 7, within bracket Chief Justice Qazi Faiz Isa, Justice Sardar Tariq Masood, Justice Sayyid Mansoor Ali Shah, Justice Aminuddin Khan, Justice Jamal Khan Mandokhel, Justice Athar Minilla, and Justice Musarrat Hilali dissenting, subsection 2 of section 5 of the Act, within brackets, granting a right of appeal retrospectively, is declared to be ultra vires the Constitution, and to this extent the petitions are allowed. So I hope that clarifies the matter, and we try to do it in the shortest possible time, and you have the benefit of the order of the court. And now we will take time to write the detailed reasons. Once again, ladies and gentlemen, thank you very much. And members of the press, thank you to them as well from all of us, hopefully for accurate reporting. Very grateful. Now, well-deserved rest I will give. Okay. Thank you. Thank you. प्रोसीजर एक्ट के हवाले से महफूज फैसला सुना दिया गया है। फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। 10-5 के तनासुब से एक्ट को बरकरार रखा जाता है। महफूज फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुनाया है। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से महफूज फैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। अदालत ने कहा है कि 10-5 के तनासुब से एक्ट को बरकरार रखा जाता है। महफूज फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुनाया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान टेलीविजन का बतौर खास शुक्रिया भी अदा किया है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से महफूज फैसला, जो कि 5:30 पे आना था, कुछ ताखीर से आया, जिस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का यह कहना था कि कुछ वक्त लिया गया है जो कि दरकार था। उसके बाद उन्होंने खुद ये फैसला पढ़कर सुनाया, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। 10-5 के तनासुब से एक्ट को बरकरार रखा जाता है। दरखास्तें निपटा दी गई हैं और ये फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुनाया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 15 रुकनी फुल कोर्ट ने इस केस की समाअत की। और आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इसको बराह रास्त नशर किया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान टेलीविजन का बतौर खास इस हवाले से किरदार अदा करने पर शुक्रिया भी अदा किया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से दरखास्तों को निपटा दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया है और ये दरखास्तें जो दायर की गई थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले
इन दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को बरकरार रखने का कहा है और केस की कार्रवाई को बराह रास्त दिखाने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पीटीवी का बतौर खास शुक्रिया भी अदा किया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि इसके हवाले से इस खिलाफ जो दरखास्तें दायर की थी उनको मुस्तरद कर दिया गया है। एजाज हुसैन हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उस हवाले से वही हमें आगाह करेंगे। एजाज हुसैन जरा डिटेल से आगाह कीजिए हवाले से। जी, कानून को सुप्रीम कोर्ट ने 10/5 की जो तनासुब से जायज करार दे दिया है और जो उसके खिलाफ दरखास्तें थी, इसमें बेसिकली 3 ऑर्डर्स हैं। वो उस जो दरखास्तें थी उनको खारिज किया है, लेकिन साथ ही साथ अदालत ने जो माजी से यानी कि अपील दायर करने का सिलसिला था, जो एक हक दिया था, उस पर 9/8 की रेशो से 9/6 की रेशो से वो जो मामला है अदालत ने उसे आइन से मुतसादम करार दिया है और उसे उस हद तक जो दरखास्त गुजारों की अपील है या तो उनकी जो गुजारिशात थी उनको मंजूर कर लिया है। तो लिहाजा जो माजी से अपील हो सकेगी, जो अपील का हक है वो मिलेगा दरखास्त गुजारों को, लेकिन माजी से तो मिला जाना वाला हक उस हवाले से जो शिक थी उसको अदालत ने आइन और कानून से मुतसादिम करार दिया है। लेकिन जब अगर हम बाकी उसकी इस सारे कानून की बात करें तो अदालत ने इसको एक जायज कानून करार दिया है और 10/5 का ये फैसला है उस हवाले से, और अदालत ने इस कानून को सिर्फ 2 शिकों के अलावा बाकी कानून को बरकरार रखा है। जी, बहुत शुक्रिया एजाज हुसैन, आपका आप डिटेल से आगाह कर रहे थे। अच्छा एजाज, आप मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से महफूज फैसला जो कि पहले 5:30 पर सुनाया जाना था, कुछ ताखिर के साथ सुना दिया गया है। ये फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने ये सुनाया है, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से दरखास्तें निपटा दी हैं, दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के कानून को बरकरार रखा है। एजाज हुसैन इसी हवाले से हमें डिटेल से भी आगाह कर रहे थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने 15 रुकनी फुल कोर्ट ने उनकी जेर सरबराही इस केस की समाअत की और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इसको बराह रास्त सुनाया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया है और 10/5 की तनासुब से इस एक्ट को बरकरार रखा गया है। 10/5 के तनासुब से इस एक्ट को बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से महफूज फैसला सुना दिया गया है। फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो दायर थी 9 के करीबी दरखास्तें थी उन सबको निपटा दिया है और इन दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है और 10/5 के तनासुब से इस एक्ट को बरकरार रखा जाता है, ऐसा कहा गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को बरकरार रखा है।